بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کا اچھے وقت آنے سے پہلے یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ رب العزت جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ کب کس انسان کا وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے صحابہ کرام، فقہا اور فقراء نے بتائی ہیں۔ آپ اس وقت کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس ویڈیو کو آخر ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں، یعنی کہ کسی انسان کو ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی دکھائی دے، وہ انسان سمجھ جائے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب اور ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے عرض کی، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کہ اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ رب العزت وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر فرماتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا، امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 نشانی یہ ہے، فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی کہ نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر اس انسان کو ایسا محسوس ہو اللہ رب العزت اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، انسانوں کو صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ صبح فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2 جس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس انسان کو دین سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے انسان کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت قرآن مجید کی محبت، اللہ رب العزت دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اس بات کی نشانی ہے ایسے انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 3 جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جائے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے اس
को थोड़ी सी आजमाइश में मुब्तला करता है। ऐ शख्स, मैंने ये भी सुना है, रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला जब किसी शख्स को अपना महबूब बनाता है, थोड़ी सी आजमाइश डालता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहते हैं ये मेरा महबूब बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी रहता है, क्या शिकवा करता है। याद रखना, जो इंसान अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उसे उस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी नेमतों से नवाजता है। जो इंसान शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए ये परेशानियां, दुख और दर्द क्यों, अक्सर लोग धोखा और मुसीबत में ऐसा ही करते हैं। मगर याद रखें, एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह के फ़ैसले पर हमेशा राज़ी होना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने पूछा, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से मारा क्यों जाता है, तुम्हें इतनी मुसीबतें क्यों दी जाती हैं। उस पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ऐ शख्स, तुम कभी बाज़ार से मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उन्हें बजा बजा कर देखते हो, कहीं से कमज़ोर और टूटा हुआ ना हो। इसी तरह से मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी मुझे आज़माया था और मैं अल्लाह ताला जल्ल शानहू की इस आज़माइश पर पूरा उतरा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आज ये मुकाम अता किया है। नाज़रीन ग्रामी, याद रखिए, ये वही सहाबी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज के सफ़र पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, यहाँ कौन है, ये किसके कदमों की आहट है। तो इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी के कदमों की आहट है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ए बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, तुम्हारे कदमों की आहट अर्श पर सुनाई देती है। आपकी इस बात पर हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो मुझे ये दर्स दिया था। हज़रत बिलाल की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था। हज़रत बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने बताया था जो इंसान हर वक्त वज़ू में रहता हो वो अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा बन जाता है। आपके दिए हुए दर्स पर अमल किया, हर वक्त बावज़ू में रहा, इसलिए मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता और जब मैं बेवज़ू हो जाता फ़ौरन ही वज़ू कर लेता और जब मैं वज़ू करता तो फिर उसी वक्त 2 रकात नमाज नफल भी अदा करता। यही वजह है हम चलते ज़मीन पर हैं और हमारे पैदल चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। ऐ इंसान, याद रखना, आजमाइशों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी में सिर्फ़ एक ही बात याद रखो, आजमाइश देता है। नंबर 4, तुम्हारे चेहरे पर कभी भी रौनक आने लगे, समझ जाओ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ लेना चाहिए बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है, उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जिस शख्स को अल्लाह ताला अपना प्यारा महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी कि हर वक्त खुश रहता है।
बल्कि ऐसा लगता है दुनिया में उस इंसान से बड़ा पुरसुकून और वक़ार वाला कोई शख्स नहीं। ऐसा लगता है दुनिया का कोई भी गम उस शख्स को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लगे, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान और खुशी के आसार दिखाई देने लगें और अपने गुस्से पर काबू करने लग जाए, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए उसकी ज़िंदगी में खुशियों की बारात आने वाली है। उसका वक्त बदलने वाला है और ऐसा इंसान किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करे और सोचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता कर देता है। नंबर 5, उस इंसान के खर्चे में कमी आ जाती है, यानी कि खर्च तो वो करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मालो दौलत में और उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देते हैं। पैसा और रिज़्क़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, पांचवें निशानी ये है, जिस इंसान के खर्च में कमी वाक़या हो जाए और रिज़्क़ में बरकत होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए उस इंसान का बहुत जल्द वक्त बदलने वाला है, उसका बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की हलाल की कमाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बरकत डाल देते हैं, वो पैसा लोगों में क्यों ना बांटे, पैसा ख़त्म नहीं होता। वो गरीबों में पैसा क्यों ना बांटे, दौलत ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा जिस इंसान का दिल रोशन हो जाए, यानी कि जो इंसान हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही उम्मीद रखता हो, उसके पास कुछ हो या ना हो, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं करता और कहता है अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करता है, इस बंदे को अपना महबूब बना लेता है, तुम भी उसे अपना महबूब बना लो। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है, तमाम फ़रिश्तों को ये ख़बर पहुंचा दो, ये बंदा अल्लाह का प्यारा महबूब बन चुका है। फिर सातवें आसमानों के सारे फ़रिश्तों ने उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, ए लोगो, फ़लाँ इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब बंदा है। तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात उस इंसान से मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम भी उस इंसान से मोहब्बत करो। दुनिया के लोगों के दिलों में भी अल्लाह उस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन गरामी, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में अगर एक भी निशानी नज़र आ जाए तो समझ जाना बहुत ही जल्द उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।